ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਨ ਲਾਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ 20 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ उसके कारण मैं इसमें आया। अच्छा, कैंसर आपके घर में आया? हाँ। फिर उसमें आपने कैसे कैसे एक फसल में 3-3 4 फसलें कैसे ले रखी हैं? ये दिखाओ जी हमारे क्या टमाटर है, उत्थे ही चुकंदर है, ये देसी टमाटर है, ये देसी टमाटर है। जिंदगी आ खेत देखो तुसी, 1 एकड़ खेत आ पीछे मेरे तुसी देख लो। कल जब खेती स्टार्ट करी थी आपने 20 किल्ले की खेती, अगर बोला आपने की, वो सफर कैसा था स्टार्टिंग में? आज 1 एकड़ 20 एकड़ के बराबर कैसे हो गया? आदमी किसी भी कर्म पे चले, तहे दिल से चले, बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ कि वो हर अवस्था में अपने को कंट्रोल कर ले। लेकिन मैं आपको बुलाऊंगा, दिखाऊंगा सारा कुछ। 10 के इर्द-गिर्द में तुम्हें 10 लाख एक, हाँ, 1 साल में, 1 साल। और जब कितना फर्क पड़ जाता है इनकम में? इनकम में तो बाबूजी जमीन आसमान। जैसे वो 2000 रुपये का सामान बेचा, हाँ जी, मैं 3-4 का बेचूं। वो 2000 में 500-400 का फर्टिलाइजर भी लावे, मैं कुछ मिल जाता। एक सोच कर, ये 2 ने भी छोड़ दो, 1 एकड़ ये सोच कर करो कि हमने 5-4 साल कुछ नहीं मिला, ये समझ लो का ही नहीं मेरे पास। तो मैं लिखित में दे रहा हूँ, छठे साल तुमको 1 किलो उड़ान, 2 में करेगा, 3 में करेगा, 4 में 5, अपने आप ही चेंज होता जाएगा। और तो पंसारी की तरह एक जमीन में जितनी भी ज्यादा क्रॉप लेंगे उतनी बैठ, जैसे कराने 5-10 वैरायटी होंगी तो मेरे पास आएगा। अगर मैं किला आलू लगाऊंगा तो आलू वाला आएगा। हाँ। और जो मेरे पास सारी वैरायटी होंगी, आप भी जाओगे मेरे कस्टमर बनकर तो ये सोचेंगे चल यार और चीज नहीं, जैसे टमाटर ही ले लो, धनिया ही ले लो, कुछ ना कुछ लेवेंगे मेरे से। ये गर्मी में केचुए देखो आप, ये तो उसे देखो, ये चीज होती है इसमें। हाँ, ये हमारे मित्र की है, ये हमारे मित्र जीव है, ये दिन रात सोते हैं। ये देखो, कोई भी खेत जाकर देखो रासायनिक वाला रहो, ये देखो, ये इसकी मतलब खासियत है, इससे पता चलता है उपजाऊ है खेत आपका। हाँ, ये अच्छा खेत है, उमस बनाता है। ये देखो, अच्छा, ये उमस बनाता है। ये देखो, आज से ऐसे खोद लो, 20 रुपए का पिंडा कम से कम, एक छल्ली। अगर इस पे 2 लगी 40 ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਰਸਾਇਣਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਖਾਦ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਖਾਦ ਦਿਖਾਣੇ ਕਿਹੜੀ ਖਾਦ ਆ। देखो, एक गाय से 30 एकड़ खेती हो सकती है। ਉਹ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ 17 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ, ਫਿਰ 1 ਏਕੜ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜੀ? ਉਹ ਖੇਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਨੈਚੁਰਲ ਖੇਤੀ, ਜਿੰਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੂਰ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਖੇਤੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਜਿੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਟਿਕਰੀ ਪਿੰਡ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬਜ਼ੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਦੀ ਆ, ਇਹ ਚੁਕੰਦਰ ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜੀ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਾਵਾਂਗੇ। ਆ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਹੈ ਖਾਸ ਕੀ ਏ, ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਟਮਾਟਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੁਕੰਦਰ ਹੈ, ये देसी टमाटर है, ਇਹ ਦੇਸੀ ਟਮਾਟਰ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਖੇਤ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, 1 ਏਕੜ ਖੇਤ ਆ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਆ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 50 ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ 17 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆਏ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਆ, ਨੈਚੁਰਲ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਸੁਣਿਓ ਇਸ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੀ ਜਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਸੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਬੜੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਕੇ ਫਿਰ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਮਾਸਟਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਘਰ ਵੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤ 'ਚ ਹੀ ਵਾੜਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆ ਪਰਾਲੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਫਸਲ ਆ, ਇਹ ਭਿੰਡੀਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅੰਕਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਖੇਤ ਆ, ਸੋਹਣਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ,
ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ। ਅੰਕਲ ਦੇਖੋ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਿਹਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਸਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫੰਦਾ ਫੁੰਦਾ ਲੱਭਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫੰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। देखो सच्चाई यही है। देखो जिस टाइम आदमी की सोच की नेगेटिव ही सोच आवेगी ना, हाँ जी, पॉजिटिव सोच होगी नहीं तो कामयाब हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। और आदमी किसी भी कर्म पे चले, तहे हाँ जी, दिल से चले, बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ कि वो हर अवस्था में अपने को कंट्रोल कर लेगा। ठीक है जी। तो इसमें हाँ जी, इधर देखो हमारी जो भी क्रॉप है, हाँ जी, ये एकदम शुद्ध है 100%। बिल्कुल। और 4 साल मेरे को नेचुरल में हो गए, हाँ जी, 2 साल ऑर्गेनिक की। ऑर्गेनिक भी बहुत महंगी है, हाँ जी, लेकिन नेचुरल में इतना स्वाद आया हाँ जी, कि हमने धरती माता की सेवा करने का मौका भी मिला। हाँ जी, और जैसे कहते हैं ना कि माँ अपने बेटे का कभी बुरा नहीं चाहेगी, बिल्कुल, लेकिन आज के जमाने में बेटा ही बुरा करने पे तुला हुआ है। बिल्कुल। हमने माँ की सेवा करी, रिजल्ट का खुद हमने पता। और अच्छा जो जी, मेरे भाई नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, हाँ या जी, उनसे पूछो, सब मेरी मुट्ठी में नहीं है। उनसे ये पूछो कि आपको कोई समस्या है। मैं लिखित में कह रहा कि किसी भी नेचुरल वाले को कोई समस्या नहीं। आज मेरे दूर दूर के जो कर रहे हैं ना, हम भी बीज मंगाते हैं, कोई हमारे से गेहूं का पूछता है, जो हमारे पास नहीं है तो हम उनका नंबर देते हैं, वो वहां से संतुष्ट होकर लेते हैं। रेट की कोई दिक्कत ही नहीं है, माल बेचने की कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ हमारी इसमें है, सोच में। बिल्कुल जी। हम नेगेटिव सोच सोचते हैं। 4 साल में आपने इस धरती का इलाज किया, जहर निकाला, हाँ जी, इसमें से कैंसर निकाला और बीमारियां निकाल दी हैं, अब क्या रह गया इसमें? देखो अभी भी पूरा नहीं है। अभी क्यों? भी 4 साल के बाद भी हाँ अभी ये भी लगता है थोड़ा है। हाँ, देखो हमारी जमीन में जो जीवांश कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन बोलते हैं जिसको, हाँ जी, कोई भी जमींदार टेस्टिंग नहीं कराता। जब मैंने शुरू में कराया, जबकि हमारी ऑर्गेनिक कार्बन 1 से 1.5 के बीच में कम से कम होना चाहिए, 1 से अच्छा जी, 1.5 के बीच में। ओके, और जब हमने अपने इसका टेस्टिंग कराई, जिस टाइम हम नेचुरल में आए, तो हमारी जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन था 0.24, 24 और उस पे लिखा था पुअर, मतलब बिल्कुल बिल्कुल खत्म है, खत्म, बंजर। बंजर जमीन हाँ, मतलब बंजर क्या? जमीन है। जहरीली, हाँ, जहरीली खत्म है। बिल्कुल। और हमने 2 साल के बाद जब कराया, तो हमारा ऑर्गेनिक कार्बन आया 0.64। और 0.64 अब हम दोबारा करावेंगे, ताकि हमें ये पता लगता रहा कि हम सही ट्रैक पे चल रहे, सही दिशा में चल रहे या नहीं चल रहे। अगर अब की बार और बढ़िया तो बल्ले बल्ले, जहाँ 8 से ऊपर हो जाएगा ना, तो हमें किसी चीज की मेहनत की भी जरूरत नहीं है। अंकल जब खेती स्टार्ट करी थी आपने, 20 किले की खेती हाँ जी, आपने घर बोला आपने की हाँ है, जी, हाँ। वो सफर कैसा था स्टार्टिंग में? आज 1 एकड़ 20 एकड़ के बराबर कैसे हो गया? देखो बिल्कुल सही है ये। क्यों? लोग दूसरों की सुनाओ, मैं तो अपनी सुनाता हूँ। हाँ जी, जब मैंने 20-22 एकड़ रासायनिक कर रहा था, मैं पहले साल 1.5 लाख रुपए टूटा, अच्छा, मैं आड़ती का। क्यों? उसमें मर तो नहीं रहे ना कि हम उधर ब्याज पड़ रहा, उधर से दवाइयों का रासायनिक ले खर्चा, रहे, सारी उधर चीजें। से वो ले रहे, लेबर का भी। एक जमींदार इतना बोला कि वो नहीं सोचेगा, तू बैठ नौकरों के भरोसे सब सौदा। नौकर क्या पता जो 1000 रुपए का सौदा ले आओ, किस हिसाब से कर रहे, उल्टा नुकसान ना हो रहा। बिल्कुल जी, तो कुल मिलाकर मेरे को उसको पहले साल 1.5 लाख, अगले साल देखा तो 4.5 लाख। तीसरे साल ऐसी कुदरत की मार पड़ी कि बारिश, जीरियों में बड़ी बड़ी जीरी सड़ गई। गेहूं में जिस टाइम फसल पर वो है, उस टाइम बारिश आएगी, पानी देगा ऊपर से बारिश, वो भी खत्म। तो कुल मिलाकर 6.5 लाख रुपए आड़ती का हो गया। उधर से मेरे को लोन लान चल रहे थे, जैसे मेरी अच्छा लिमिट है। कर्जा उठा रखा हाँ, था, मतलब टोटल 17 17 17 के करीब पहुंच पहुंच गया। गया। हाँ जी। फिर क्या उसके बाद क्या कदम उठाने की कोशिश करी? बस उसके बाद फिर मैंने सोचा, मन में पूरे बुरे ख्याल आए, कैसे करूंगा भाई, जगह सही तो हो ही जाएगी। जमीन लोगों भी कहना चालू हो गया, अब बेटे की 1 किला बिकेगा। बिकेगा जी, हाँ, और पक्का बिकेगा। मैंने भी होया है तो बिकेगा। बिकेगा। और मेरे पास और कोई जुगाड़ ही नहीं, कोई काम ही नहीं। आप अकेले हाँ, यही काम करते हैं जी? हाँ जी, मैं अकेला यही काम करता हूँ। बच्चे भी लग जाए मेरे साथ हैं, और ठीक गुजारा हो रहा है, बढ़िया गुजारा हो रहा है। लोगों को देन भी लग रहा, फिर थोड़े थोड़े देन लग रहा। हाँ मतलब लेकिन कि ये नहीं है कि मैं दे नहीं पाऊंगा। अब ये सोच आएगी कि दूंगा, और दे भी दूंगा। कुछ मैंने क्लियर भी कर दिए, 1-2 अरे लोन। अंकल जैसे हाँ, देखा जाए तो जब नेचुरल खेती का आपने ख्याल लिया है, हम्म,
उसके बाद हिम्मत कैसे हुई भी नेचुरल खेती कर सकूं मैं? देखो मैं गुरुकुल में गया था, ये अपना कुरुक्षेत्र में, हम्म। जो अपने मास्टर आचार्य देवर जी हैं वहाँ वहीं। हाँ जी, जी। और और थोड़ा अंदर ही आ जाओ, हाँ ना वहाँ साहब। हमारे डॉक्टर साहब हरिओम जी हैं, हाँ जी, जो हाँ जी, प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं बिल्कुल। और पद्मश्री से अवार्ड हुए। हाँ जी, उनके सानिध्य में आके जब हमने उनकी 180 एकड़ भूमि देखी हाँ जी। और ये देखा कि वो खार बीन डाल रहे, ओके। केंचुए वहां देखे, और उनका जो गन्ना देखा, कोई किसी प्रकार की बीमारी नहीं। तब मन में ये आया कि जब ये कर रहे तो हम क्यों नहीं कर सकते। इन पर तो 180 एकड़ है, ये कहाँ कहाँ देखेंगे, मेरे पास तो एक ही एकड़ है, मैं एक एकड़ को तो करूंगा। तो तभी ये प्रण निर्णय डाल लिया था कि भाई ये तो करना ही है, चाहे मरा, चाहे चाहे जो मरा, मर्जी हो लो। चाहे कुछ हाँ, हो। जब मैंने 2 साल तक मेरा थोड़ा सा पीलापन आ गई है, नाइट्रोजन की कमी हुआ हाँ, है, एकदम स्टार्टिंग तो में तो होता नहीं। जब 70 साल हो जार गे रखा हो एकदम से, तो एकदम नहीं करता है, नहीं। जादू की छड़ी तो है नहीं कि ऐसे कर दी। कोई भी बंदा हाँ, बीमार हो सर, उसको लेकिन तो समय टाइम तो लगता है। हाँ, तो अब हमने ये देखा, 2 साल जैसे हमने फसल उसी के में ही बह दी, लेकिन वन पिक्चर रखा कि भाई करना ही है, जो हुआ होने दो। मेरे साथ का एक बंदा और गया था, हाँ जी। वो एकदम, उसका बैलेंस भी ठीक है, अच्छा भी काम है, 3 एकड़ 3.5 कनाल जमीन है। मैंने हमने इकट्ठी करने का सोचा था, लेकिन उसने मेरी फसल देख कर वो न्यू कर गया, भाई मैं नहीं करूंगा। मैं, अरे मगर तेरे तो बच्चे भी कमा रहे, तेरे को तो सुनहरी मौका है। हाँ जी। उन्होंने कहा तू मर, मैं नहीं करूंगा। चलो भाई, अच्छा। फिर लोगों ने मजाक भी लाए, 2 साल पूरे लाए, चलो। पर मेरा मन यह था, वो कह रहे यहाँ से सुनो, यहाँ से निकालो अपने मन के मन में। पर आज कैसे है? आज वही आदमी नु कह रहे यार, मेरी में तो ये कीड़ा लग गया, तेरी ठीक है, इससे तो तू डालता कितना? होगा, हाँ। भाई तेरी सोच है, डालता हूँ। वो तो मैं जानू, मेरी जमीन जाना है, चेक मेरी कर लो, धरती माता मिट्टी जाना, मिट्टी छागा कर मिट्टी लो। की टेस्टिंग डॉक्टर कराए, अच्छा। वहां रिपोर्ट जावा है, वहां से हमने पता लगा फिर इतना ऑर्गेनिक कार्बन होया तो कितना हमारे फर्क पड़ जाता है इनकम में? इनकम में। तो बाबूजी जमीन आसमान का, अच्छा। जैसे वो 2,000 रुपये का सामान बेचा है, हाँ जी। मैं 3-4 का बेचूं, वो 2,000 में 500-400 का फर्टिलाइजर भी लावेगा, मैं कुछ भी नहीं जानता। एक एकड़ में से कितना कमा सका बंदा वैसे? देखो जो पूरा का पूरा ये सेट हो गया ना, हाँ। टाइम लगेगा, हाँ। लेकिन मैं आपको बुलाऊंगा, दिखाऊंगा सारा कुछ, 10 के गेड़ गेड़ में तुम्हें अभी दस कह रहा हूँ। लाख एक हाँ, एक साल में? 1 साल में। और वाह, जब मेरा एक फ्रूट, एकड़ में से? क्या बात बाबूजी मोदी जी कह रहे डबल, मैं नहीं कहूँ 10 गुना। है। अच्छा। पर जमींदार करो तो सही, 100 एकड़ वाला 1-2 एकड़ से करो, बाकी मेरा साइन करो, हम कब रोका है। पर और एक दो जब किला चार करके देखो। दो, ये सोच कर, ये दो ने भी छोड़ दो, 1 एकड़ ये सोच कर करो कि हमने 5-4 साल कुछ नहीं मिलना, हाँ ये जी। समझ लो का ही नहीं मेरे पास। तो मैं लिखित में दे रहा हूँ, छठे साल उनको कहेगा 1 किलो और आने दो, 2 में करेगा, 3 में करेगा, फिर बढ़ना चार में, बढ़ना। पांच, वो अपने आप ही चेंज होता हाँ, जाएगा। और हर आदमी को आना पड़ेगा, ये गारंटी है। क्यों आना पड़ेगा, जब मेरे घर में कैंसर का मरीज होगा, मैं जमीन का क्या करूंगा। अच्छा, आपके घर में जमीन का, मौत हुई थी? मेरा बड़ा भाई गुजरा, उसके कारण मैं इसमें आया। अच्छा, और कैंसर आपके घर में आया? हाँ, फिर उसकी मौत के बाद आपने ये कदम हाँ, ये उठाया? प्रण कर लिया था भाई मैंने एक ये। कर्जा, हाँ, एक मौत, हाँ, दो चीजों ने आपको यहाँ मोड़ दिया। बस, मतलब कि देखा जाए तो कर्जे के बाद भी मौत थी आपकी, बीमारी हुई तभी मौत थी, पक्का। पक्का मौत हाँ, थी। पर आपने फिर भी ये रास्ता चुन लिया। हाँ जी। पर अब अब देखते हैं फसलों में आपने हाँ, कैसे कैसे, एक फसल में तीन तीन चार फसलें कैसे ले रखी हैं। ये देखो, दिखाओ जी हमारे को। हाँ दिखाते हैं, ये देखते हैं अभी आ जाओ तुसी देखो दर्शको, ਤੁਹਾਨੂੰ यहाँ ਹੁਣ से ही देखो आप। ਮੇਨ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਫਸਲਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਫਸਲਾਂ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ये ਰਹੀਆਂ। यहाँ ਆਪਾਂ से ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। यहाँ ਹਾਂਜੀ। से वहां तक ये 1, 2, 3, 4, 5 ਹਾਂਜੀ। 5 प्याज पांच क्यारियों फसलें, में ये तकरीबन 3 कनाल 2.5 कनाल खेत है। 2.5 खेत है। 2.5 कनाल खेत के अंदर नीचे है या हमारी हल्दी। देखो जी देखो दर्शकों ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। हाँ, हाँ इसके नीचे ऊपर ऊपर हाँ ऊपर हमने ये धनिया की क्रॉप ले ली। ठीक है जी, ऊपर धनिया बीज दिया आपने। हाँ, तीसरा ये हमारा फ्रांस बीन है, ये देखो। फ्रांस बीन भी देखो जी। चौथी हमारी ये देखो चना है, चना भी आ गया। हो गया चना। और मतलब 5 तो फसलें यही धनिया, होगी है जी। हाँ, और उसके बाद हमारे देखो उधर बेल है, सारी बेल ऊपर से कवर करेंगी अभी। अजय ये ਵੇਲ हाँ, ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਇਹ हाँ, ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ हाँ, ਤੱਕ ਚੜ ਜਾਣੀਆਂ हाँ, ਉੱਪਰ, ਪਰਾਂ हाँ, ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਈ ਹੋਈ ਆ। हाँ, ਤੇ ਸਰ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੁੰਦਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਏ ਹੋ ਨਾ? हाँ। अब ਸਹੀ ਗੱਲ। ये हम ना मतलब कोई भी जगह खली नहीं रखते, जो जी करे ना वही लगा दो, धरती माता हमारे को देवी ही देवेगी। अच्छा, हाँ, फिर इतनी फसल में कितनी की पैदावार हो जाती है? मतलब छोटी आपने एक लेयर ये लगा दी छोटी है ना, जैसे एक देखो वाली मैं 1 एकड़ का जमींदार हूँ, मैं सब्जियां मौसमी सब्जी करता हूँ। मौसमी सब्जी। और जब मैं अपने कस्टमरों को 5-10 वैरायटी होंगी तो मेरे पास आवेंगे। अगर मैं किला आलू लगाऊंगा तो आलू वाला आवेगा। हाँ हाँ हाँ। और जो मेरे पास सारी वैरायटी होंगी, आप भी जाओगे मेरे कस्टमर बनकर तो ये सोचेंगे चल यार और चीज नहीं, जैसे टमाटर ही ले लूं, बिल्कुल। धनिया ही ले लूं, कुछ ना ओके। कुछ लेवेंगे ही मेरे से।
अब मैंने इसके अंदर स्वीट कॉर्न लगा रखा, भाई आ जाओ इधर, आ जाओ मतलब जी। गिनती ही नहीं कितने है मेरे, ਤੁਸੀਂ कम ਦੇਖੋ से कम ਬਈ 20 करोड़ ਆ का ਦੇਖੋ भी है। ਟਮਾटर हाँ ਅੰਕਲ ਨੇ ਇੱਕ हाँ ਤਿੰਨ ਲੇਅਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਮਾਟਰ ਦੀਆਂ हाँ ਪੂਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। हाँ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ हाँ। ਟਮਾਟਰ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ। हमने तो पंसारी की तरह एक जमीन में जितनी भी ज्यादा क्रॉप लेंगे उतनी बेटर है। जैसे किराने हाँ वाले दुकान ने हाँ, वाले ने दुकान में सामान पूरा भर रखा हो ये हर हर तरह का। जमींदार को समझना पड़ेगा। भी हम एक ए, किले में दो तीन अब जमींदार मार का खावा है, जब सीजन में दिक्कत धनिया 400 रुपए किलो पहुंच गया, हाँ जी। 4-10 किले ठोक देंगे। अच्छा वो वो तो उनका खर्चा भी नहीं पूरा होगा, तब वो कहेंगे यार ये तो बड़ा गलत हो गया। हाँ अगर वो 1 एकड़ में 20 वैरायटी लगावेगा, हाँ जी। पंसारी बनकर जावेगा और हाँ अपना माल खुद बेचो, डंके की चोट में बेचो, आप हमने बेच रहे क्या अपना, शर्म है? आप बेचते हो अपना हम सामान। अपना मार्केटिंग खुद करते हैं, प्रोसेसिंग खुद करते हैं, खुद मेहनत करते हैं, बाहर से कुछ नहीं करते। और आपके ग्राहक जो मंडी में जाते हैं वहां भी तो आपको फिर कहते होंगे यार ये कौन आ गया। मेरा ग्रुप बनता है, हाँ जी। वो तो लाते हैं मंडी वाले, तो सोचते हैं ये क्यों आ गया यार, अच्छा वो शिकायत भी करे, जो मर्जी करो, मेरा कोई डर नहीं है। कहीं तो मेरे पे डांट भी मारा, तू ये कहाँ से लेके आ गया बिजड़ो। दूसरे बड़े ग्राहक बड़े, तो फिक्स ग्राहक हो जाते हैं आपके ना। हाँ जो नया गाहक आवा ना, जैसे डीएसपी एसपी और डीआईजी वगैरह भी आवा आपके ग्राहक है पक्के हाँ डॉक्टर। हाँ, डॉक्टर अच्छा जो प्रिंसिपल साइंटिस्ट रिटायर्ड है, जो डॉक्टर है, डोंगरों के डॉक्टर है, या जमीन के डॉक्टर है, या अपने वैसे डॉक्टर आपके है, पक्के ग्राहक है। पक्के गाहक है मेरे। आप उनसे भी कभी मालिक शुक्र रखेगा मिलावेंगे। क्योंकि हाँ, उनको आपकी सब्जी में क्या दिखता है। उनको ये दिखा, अपना भविष्य दिखा उनको, कि ये चीज खावेंगे, हम तो लोगों को टिक्के लगावा, हमारे को कोई टिक्के ही नहीं लगावा। मेरे को हाँ कैंसर नहीं होगा। हाँ, उनको कैंसर पता है अभी उनको जो पता डॉक्टर है इस चीज का, हाँ और हाँ। वो ये कहे हमारे से तो जितने पैसे ले, लेकिन ये चीज हमारे को दे। अंकल इसमें कीड़ा कूड़ा भी लग जाता है। हाँ लगता है जी कीड़ा भी। फिर आप उगाते नहीं इसको कीड़े को। देखो पता क्या, हमारी ये नेचुरल फार्मिंग है, नेचर के अनुसार, अच्छा हमने नेचर के अनुसार ही चलना हुआ है, और हमारे को किसी ने हक नहीं दिया किसी को भी किसी चीज को हानि पहुंचाने का, तो हमें कोई कीट को भगाने की जरूरत ही नहीं। ये अच्छा हम बैलेंस बनाया है धरती माता ने। अच्छा जो कीड़े होते हैं उसको भी जरूरत है हराने की। देखो पता क्या, हमारा सिर्फ ध्यान होना चाहिए अपनी धरती की फर्टिलिटी बढ़ाने में, और उसके बाद नेचर पे छोड़ दो, नेचर के अनुसार चलो। नेचर ने बैलेंस बनाया हुआ, इस कीड़े को जानवर खावेगा, एक जीवे जीवो आहार, जीवी जीव का भोजन है, तो एक कुदरत ने बैलेंस बनाया। जैसे मांसाहारी तो मांस खावेंगे, हाँ जी। शाकाहारी शाक खावेंगे, तो ये हमारा शाकाहारी मांसाहारी इसको खावेंगे, तो हमें अच्छा क्यों मारे हैं? ये तो मालिक मारो तो लाख मारो, हम नहीं मारेंगे। और जो ये अपने भाग का खावेंगे जो खावेंगे। उसके बाद आपने मक्की भी लगा रखी है पर है ना। हाँ ये ये सारी बेलें लगा ये रखी हैं। हमारी स्वीट फ्रूट कॉर्न है। फ्रूट भी लगा रखे हैं सर। हाँ फ्रूट भी लगाए हैं सर। आ हाँ जाओ चल दिखाने हैं आओ, तुम। आ जाओ फ्रूट दिखाने थोड़ा हैं। ध्यान से था ये। क्योंकि पूरे खेत तारा हाँ तारा ने हाँ, थोड़ा ध्यान ਤਾਰਾਂ से। ਤਾਂ ਨੇ हाँ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ हाँ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਕਰ ਦਈਏ। हाँ, ਠੀਕ ਹੈ। ये जो मल्चिंग की हुई है ना, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦਿਖਾਣਾ ਦੇਖੋ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਅੰਕਲ ने सीधी सुट्टी हुई ਵਿੱਚ। अंकल ये पराली डाल के लोग तो कहते हैं इससे कीड़ा लग जाता है इससे खराबी हो जाती है वही पराली बताते हैं सर। ये जो है मल्चिंग हमने पराल की हुई है, इसका फायदा देखो। हाँ जी ये हमारा बायोमास है, ठीक है ये हमारी नेड़े जमीन दिखा दो थोड़ा जा। हाँ, हाँ ये जी जो चीज है ना देखो, हाँ इसके नीचे क्या है और जी। हमने इसको ये देखो केचुए दिखते होंगे आपको भी। हाँ जी ये देखो दिखता है? देखो तुसी हाँ हाँ, ये गर्मी में केचुए देखो आप, ये देखो केचुए। तुसी देखो हाँ, ये और चीज होती है इसमें। हाँ ये हमारे मित्र कीट है, ये ओके हमारे मित्र जीव है, ये दिन रात खोदते हैं। ये देखो कोई भी खेत जाकर देखियो रासायनिक वाला रहो, ये देखो ये देखो ये। इसकी मतलब खासियत है इससे हाँ पता लगता है कि उपजाऊ है खेत आपका। हाँ, ये अच्छा खेत है। उमस बनाता है। ये देखो, अच्छा ये उमस बताता है। ये देखो हाथ से ऐसे खोद लो, ये देखो नमी, ये देखो नरम है बिल्कुल। हाँ। तो हमने आपको कसी फिर चलाने की ट्रैक्टर तुम चलाते होंगे आप इसमें। इसमें हम सिर्फ कभी कभार चलावे, जैसे वैसी क्रॉप लगानी हो, नहीं तो ये हमारी पिछले वाली डोल है, पिछले साल वाली। और देखो इसको हाथ से ऐसे नक्का कर लो, ये देखो ये वाह देखो वाह ये देखो। तो ये चीज ही हमारी खास जमीन होती की है मेन, हाँ मिट्टी में। ये ढक के रखनी पड़ा है। जैसे धरती माता है ना, अपनी माता को हम श्रृंगार करेंगे, कपड़े पहनावेंगे, तभी तो अच्छी लगेगी। बिल्कुल ये धरती बिल्कुल माता भी हमारी है। बिल्कुल देखो तुसी हाँ। आप पूरी क्रॉपसी के लगा रखा है अंकल जी। ये हमारी मेथी थी, ये हमने पीछे हार्वेस्ट कर ली, अब हाँ। ये फली पे आएगी। ये देखो इसमें बीज निकाल लेंगे अब। ये नहीं, बस इसको ऐसे ही रख लेंगे, सुखा लेंगे इसको। सुखा के हाँ। इसका क्या बनाएंगे। इसका बीज बना लेंगे, ये वैसे रखेंगे, बीज बनावेंगे नहीं, सुखा के बेच देंगे इधर इसको। इधर आपने मक्की लगा हाँ रखी है। जी हाँ हाँ। ये मक्की भी बढ़िया हो जाएगी। ये स्वीट कॉर्न है सर, ये इसकी छल्ली जाएंगी, छली बिकेंगी पूरी। एक पेड्डा 20 रुपए का पेड्डा है, कम से कम एक छल्ली। अगर इस पे 2 लगी 40 की है। अच्छा अच्छा हाँ। जेडी ਆਪਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਆ हाँ, 40 वो रुपए चीज ਦੀਆਂ है।
क्या बात है ना, स्वीट कॉर्न होती स्वीट है, कॉर्न इसे तो होती है, कच्ची भी खाओगे मीठी लगेगी। क्या बात है। और नेचुरल कॉर्न अरे लावा है। इतने खेत में आप कितनी की निकल जाएगी सर, ये इतनी का आपने 3-4 मेड लगा रखे हैं। ये 4 मेड है सर, इसमें ज्यादा भी नहीं, 5-4 हजार की तो निकल जाएगी निकल जाएगी। आराम से। और कितने कितने दिन में तैयार हो जाती है? ये तो सर, ये मेरे हिसाब से 50-60 दिन में तैयार हो जाए। 2 महीने में तैयार होगी। हाँ। और लगा आपका खर्चा क्या लगा इसमें? ये तो हमारी सहायक फसल है, इसमें हमने ये इसलिए नहीं खर्चा क्या बोला। करा आपने इसमें? हमने इसमें सिर्फ बीज लगाया 50-100 रुपए का। 100 रुपए का बीज डाला हाँ और 5,000 की 2 महीने बाद तैयार हो जाएगी आप। पक्का। क्या बात। इसकी हमने सिर्फ छल्ली तोड़नी, हाँ जी। जो ये सौदा है अपनी गाय को खिलाएंगे। अच्छा, ये गाय को 2 फायदे करेगी। बिल्कुल करेगी। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਜ ਲਾਇਆ ਤੇ 5000 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਲੈਣਾ। ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ 5000 ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੱਤੇ ਬਚਨੇ ਨੇ ਇਹ ਚਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਾਂ हाँ ਨੂੰ ਪਾਲਨੇ, गाय का दूध बेचा देगी, हाँ हाँ ਮਿੱਠਾ ਦੇਗੀ। बिल्कुल बिल्कुल। ਬਸ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। देखो सर, पता क्या, जमींदार हमारे बोले हैं एक फसल पर विश्वास करें, गेहूं जीरी गन्ना, 3 चीजें ਤੁਸੀਂ- रखें। ਹਾਂਜੀ लेकिन हम ये कहें दुनिया से हट के चलो। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਅੰਕਲ ਨੇ ਹਾਂ। ਪੂਰੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਸਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਪਰਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਪਾਉਂਦੇ ਕੀ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਧਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਲੋਕੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਰਸਾਇਣਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਖਾਦ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਖਾਦ ਦਿਖਾਣੇ ਕਿਹੜੀ ਖਾਦ ਹੈ। ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਧਰ ਨੂੰ ਪਰ। चलो जी, उधर से चलो। गंजीव अमृत का देखो, एक गाय से 30 एकड़ खेती हो सकती है। ओके। हाँ, देखो जो बताते हैं डॉक्टर हाँ कि जी। देसी खाद डालो, हाँ जी। जो ये नरोड़ा वैसे ही डाला है, ओके। तो ये 300 क्विंटल खाद 1 एकड़ के लिए चाहिए, ऑर्गेनिक के लिए। हाँ जी। तो 300 क्विंटल 60 किलो नाइट्रोजन पैदा करेगा, जबकि वो 60 किलो एक सीजन में खत्म। तो जमींदार रोज का 300 क्विंटल कैसे डालेगा? लेकिन हमारी जो तकनीक है, ये सुभाष पालेकर जी की तकनीक है जो, हाँ जी। तो उसके अनुसार ये एक गाय का 1 दिन का गोबर, 1 दिन का मूत्र हाँ जी। और 1 एकड़ काफी है हर महीने। हर महीने। हाँ, तो अच्छा। 30 दिन देवा, तो हर एक का करेंगे तो 30 एकड़ एक गाय कर लेगी। हाँ जी। लेकिन उसके लिए हमने पहले 1 किला चुनो, हाँ उसकी फर्टिलिटी बढ़ाओ। हाँ जी। जब उसका ऑर्गेनिक कार्बन 1 हो जाए, हाँ जी। तो उसको इतने की जरूरत नहीं, हाँ जी। उसको सिर्फ एक गाय के 1 रोज का हर महीने दे जाओ। अच्छा। जैसे अभी ने मूत्र कर दिया, हाँ जी। हमने इसका जुगाड़ कर रखा, देखो हाँ जी। और देखो ये गद्दा ले रखा। हाँ जी। चल, ये इससे करना हम, ये हमारा इकट्ठा हो जाएगा। अच्छा, इससे खींच लेते हो आप? हाँ, इससे हम इसमें लगा दें तो थोड़ा हाँ जी। ये हमने इसमें कर रखा फिर। ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ ਆਂਦੇ ਚ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। हाँ, हम यहाँ इकट्ठा हो जाए हमारा। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਨੈਚੁਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ। ਕਿਦਾਂ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁੱਦ ਜੀ ਆ ਇਹ ਹਾਂ। ਚੂਸ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਹਾਂ। ਚੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ना। जिस पे ज्यादा हो जुगाड़ वो अपनी नाली द्वारा ऐसे खड़ा भी रख सका, कन्नी रख सका। हाँ जी। हम तो इसमें रात को जैसे बंद है ये भर जाए, इसका गौमूत्र ये इकट्ठा कर ले। तो ओके। मतलब कहने का ये है, 1 दिन के गाय के गोबर और मूत्र से 1 एकड़ में खेती आराम से हो, हर महीने गेरो जाओ सर छुट्टी। देखा जाए तो आपको बस यही डालना पड़ता है और कुछ नहीं डालना पड़ता। हाँ, और अलग से हमने सिर्फ अपना ये बना रखा है, देखो गंजीवामृत। हाँ जी। ये तो हो गया उससे। हाँ जी। ये हम 2 महीने का होगा ये हमारा। ये 2 महीने का सामान हमने तैयार कर रखा है खेत का। ये 2 महीने का ये है कि ये हमने गंजीवामृत अपना तैयार किया हुआ। इसकी खूबी ये है कि इसके अंदर जीवाणु ही जीवाणु है। ਓਕੇ। ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਆਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਓ ਕਿ 1 ਏਕੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। 20 ਕਿੱਲਿਆਂ 30 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 50-60 ਤੋਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 40-50 ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਰਸਾਇਣ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ 30 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ट्रेनिंग भी देंगे ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ सम्मानित भी किया। कहाँ से आपको सम्मानित किया गया सर? सर मेरे को जो अपना इंडो इजराइल एग्रोनॉमी में हाँ जी। हॉर्टिकल्चर का विभाग है, वहाँ मेरे को
सब्जी सामान से पुरस्कृत किया है। अच्छा जी। और जो अपना ये हॉर्टिकल्चर उचानी में है बागवानी, वहाँ को मेरे को प्रोग्रेसिव फार्मर के नाम से 1 एकड़ ने आपको क्या कुछ हाँ दिया, जब हाँ आपने अच्छी खेती की हाँ तो आपको सम्मान भी हाँ मिला है। हाँ लोग जी, था 1 एकड़ वाला तो दुनिया में लोग जानते नहीं, 1 एकड़ वाले को कहते हैं तो हाँ गरीब किसान है, इसकी तो क्या हमारे सामने है ना, बिल्कुल 100 बिल्कुल किलो सर। के बराबर क्या है। पर आपको सम्मान किया गया 100 हाँ किलो के बराबर वाले एक किसान के हाँ बराबर। सर। तो बड़ी ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ हाँ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹਾ ਕਿਸਾਨ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ, 1 ਏਕੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਚੰਗੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਲੋਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੇ, ਹਨਾ ਜੀ ਸਰ। हाँ ਤਾਂ बहुत बड़े ਦੇਖੋ बड़े ਤੁਸੀਂ, काम। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।